Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mrs. Sana Fatma, SS Chemistry Divisional Public School and College Sahibab. Students, we are on chapter number 6, chemical bonding, and our today's topic is valence bond theory, and we will also read about the explanation of the shapes of some molecule like hydrogen, HF, fluorine, nitrogen, and H2S according to valence bond theory. In the previous lesson, you have learned about what is valence shell electron pair repulsion theory and what are Ab2, Ab3 and Ab4 type molecule. According to this theory, the valence shell electron, like bond pair of electron and lone pair of electron, both show their participation for the determination of the shape of molecule. And for this, they try to keep them apart at a maximum distance to keep the minimum repulsion. इसमें क्या होता है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए, और इसमें फिर वो खुद को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो. Now students, we are going to learn about our today's learning objective. Today we will read about what is valence bond theory, how sigma and pi bonds are formed, and we will explain the shapes of some covalent compound according to valence bond theory. What is valence bond theory? Valence bond theory is, according to this theory, a covalent bond is formed between two atoms by overlap of half-filled valence atomic orbitals of each atom containing un. इस थ्योरी के मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब कोई से दो एटम्स जिनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. ओवरलैपिंग के नतीजे में उन दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है. Westbrook theory predicts and explains the shapes of molecules but does not give the reasons for the formation of bonds. But VBD is concerned with both the formation of bonds and the shapes of molecules. Westbrook theory में हमने पढ़ा था कि Westbrook theory only explains the shapes of molecules, लेकिन ये बॉन्ड्स क्यों बनते हैं उसके पीछे रीजंस क्या है इनके बारे में कुछ नहीं बताती है. बट VBD फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देती है. इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल. हियर यू कैन सी अ मॉलिक्यूल ऑफ HF. हियर इट half-filled atomic orbital of hydrogen and fluorine overlap together and a covalent bond is formed between them. Now it is the explanation of valence bond. This method of describing a covalent bond considers the molecule as a combination of atoms. इस थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है. And according to quantum mechanical approach, a covalent bond is formed when half-filled atomic orbital in the outer or valence shell of two atoms overlap, so that a pair of one electron from each atom occupies the overlapped orbital. क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के मुताबिक कोई से दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, और इसमें कंडीशन ये है कि दे शुड हैव electron so that after overlapping one electron from each atom occupies the overlapped orbital. As a result of this orbital, the electron with opposite spins become paired to stabilize themselves. और इस ओवरलैप के नतीजे में क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक एक एटम में से आ रहे होते हैं ये पेयर अप हो जाते हैं और इनकी स्पिन अपोजिट होती है और ये खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं. एंड लार्जर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. अब जितना ज़्यादा ओवरलैप का एरिया होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड बनेगा. नाउ द इसेंशियल कंडीशंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग. कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ओवरलैप. कि वो एटम्स जिनके ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लाजमी तौर पे आपस में ओवरलैप होना चाहिए. Second, the direction of overlap of orbital determines the direction of bond. अब वो बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी या बॉन्ड किस टाइप का होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स.
कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किस तरह का होगा, उसी हिसाब से जो है वो फिर बॉन्ड्स की डायरेक्शन होगी। नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। Two types of bonds are formed when s and p orbitals overlap. One is sigma bond and second is pi bond. Now what is sigma bond? A sigma bond is formed by the overlapping of two partially filled atomic orbitals in such a way that the probability of finding the electron is maximum around the line joining the two nuclei. सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब कोई से दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस लाइन के अराउंड रहती है जो कि टू न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है, यानी कि दो न्यूक्लियाई के दरमियानी जो फासला होता है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट कर लेते हैं। इसमें अब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हेन s orbital overlap with the s orbital, after that sigma bond is formed। इनके ओवरलैप से जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह जब s और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो है वो मौजूद होगी along the axis which is joining the two nuclei, and here when s overlap with the p orbital, here also the sigma bond is formed and electron will confine in this area. And third case is when p orbital overlap with the p orbital, but here the overlapping will be head to head, and as a result of that sigma bond will form। p और p ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब उनके हेड्स आपस में ओवरलैप करते हैं और उस ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। Now here is the pi bond. A pi bond is formed by side-to-side overlap of p orbitals, and the greatest electron density lies above and below the axis joining the two nuclei. pi bond कब बनता है, जब दो p ऑर्बिटल आपस में साइड पे ओवरलैप करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो p ऑर्बिटल्स हैं आपस में पैरेलल वे में मौजूद हैं और इनकी आपस में जब साइड ही ओवरलैपिंग होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट pi bond will form। और इसमें फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उस लाइन को, उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के को जो कि दो न्यूक्लियाई को मिला रही है उसकी अबव एंड बिलो जो है वो आपको नज़र आएगी। इसमें पाई बॉन्ड तब बनता है जब ऑलरेडी दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। सो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड व्हेन कोवेलेंट bonds are formed when orbitals overlap। Here is the formation of H2 molecule। As the two atoms approach each other, their 1s orbitals overlap, thereby giving the HH bond. The electron density becomes concentrated between the two nuclei. The bond is called sigma bond and it is formed by the overlap of two s orbitals. Electronic configuration of hydrogen is as hydrogen contains one electron जो कि इसके 1s में आता है। जब दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के 1s ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये आपस में ओवरलैप करते हैं। एंड आफ्टर द ओवरलैप जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो टू न्यूक्लियाई के दरमियान कंसंट्रेट हो जाती है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैप जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि s और s के दरमियान ओवरलैप हो रहा है इसलिए इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। नाउ इफ वी कैन सी द शेप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके s और s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के बाद इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव विद ऑपोजिट स्पिन और इस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स में ये पेयर अप हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शेप है। नाउ हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ HF molecule। HF bond is formed by the pairing of electron, one from hydrogen and one from chlorine। HF bond तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आता है और वो आपस में पेयर अप हो जाते हैं। According to VBT, we must have half-filled orbital, one from each atom that can be joined by overlap। VBT के अकॉर्डिंग दो हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है जो कि आपस में ओवरलैप करें और उनके ओवरलैप के नतीजे में जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए।
इसमें हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन के पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर बॉन्डिंग में अपना 2pz ये यूज़ करेगा और इसका 2pz ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवरलैप कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म। Sharing of electron occurs by overlapping of orbital, thereby allowing each atom to complete its valence shell. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में शेयर होते हैं। उसमें फिर शेयरिंग के नतीजे में उन दोनों एटम्स की वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं। फ्लोरीन एटम completes its 2p subshell by acquiring a share of an electron from hydrogen as shown below. फ्लोरीन क्या करता है कि हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, अपना 2pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है विद द 1s ऑफ हाइड्रोजन, और इनके दरमियान इस ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन का 2pz भी कंप्लीट हो जाता है, फ्लोरीन का और हाइड्रोजन दोनों का वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। The requirement for bond formation are met by overlapping the half-filled 1s orbital of hydrogen with the half-filled 2p orbital of fluorine. कि overlapping is required for the bond formation according to VPT, और ये overlapping की condition तब fulfill हो जाती है जब 1s of hydrogen overlap करता है with the 2p orbital of fluorine and there are 2 orbital plus 2 electron whose spin can adjust so they are paired। और ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन को एडजस्ट करते हैं जब वो पेयर अप हो जाते हैं। हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यू कैन सी है हियर दिस इज 1s ऑर्बिटल। एंड फ्लोरीन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये उसका p ऑर्बिटल है। जब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का P एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एंड दिस इज द ओवरलैप एरिया। ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा कि दिस 1s विल मर्ज इन द P ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और इनके दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। हियर इज द मॉलिक्यूल ऑफ HF, इसमें आप इसकी शेप देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। इसमें दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान जो है शेयरिंग होगी और मॉलिक्यूल बनेंगे। द बॉन्ड इज द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ-filled 2pz ऑर्बिटल ऑफ ईच फ्लोरीन एटम। इसमें अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2s में 2, 2px में 2 और 2py में 2 और 2pz हाफ फिल्ड है। तो बॉन्डिंग में अपना 2pz ऑर्बिटल यूज़ करेगा और जो है ओवरलैप करेगा विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ अदर फ्लोरीन एटम। तो इसमें आप शेप देख सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। एक फ्लोरीन एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसका 2pz जो है वो हाफ फिल्ड है। सेकेंड फ्लोरीन एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये दोनों फ्लोरीन एटम अपने 2pz ऑर्बिटल को ओवरलैप के ज़रिए से जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेंगे। इसमें इनके दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अपने इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करेंगे और इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग के नतीजे में दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। और ये जो ओवरलैप है दिस इज हेड टू हेड ओवरलैप, और जब दो p ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड वे में ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक फ्लोरीन एटम जब दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उनके p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उनकी हेड टू हेड ओवरलैप होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। नाउ हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की देखें तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2px, 2py और 2pz में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इसके 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट ऑन ईच नाइट्रोजन एटम, और इसमें फिर दो तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं। वन जो है एंड टू एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप अकर एंड इट रिजल्ट्स इन अ सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट क्या होगा कि एक नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल दूसरे के पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड वे में ओवरलैप करेगा और इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड the remaining two p orbital overlap in such a way that they will make the pi bond. Second possibility क्या है कि since p orbital are perpendicular to each other, so after the formation of sigma bond, the other two p orbital cannot overlap in the same fashion. कि जब एक दफा दो p ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो फिर जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स है इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो आपस में हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते। rather they are aligned parallel to the corresponding orbital in the other atom। उसमें कंडीशन ये होती है कि एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल की पैरेलल डायरेक्शन में आ जाता है, तो उनमें पॉसिबिलिटी सिर्फ यही रहती है कि उनका साइड टू साइड ओवरलैप हो सकता है। हेड टू हेड ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल इन दीज टू पैरेलल ऑर्बिटल्स। इसमें साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल अकर एंड pi बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। इसमें क्या है कि पहले दो p ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में साइड भी ओवरलैप करेंगे और इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा। Here you can see the formation of nitrogen molecule। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका 2p है। 2p दूसरे नाइट्रोजन एटम के 2p के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा कि इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे टू जो है p ऑर्बिटल्स अभी मौजूद हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इनकी डायरेक्शन क्या है कि एक दूसरे से पैरेलल डायरेक्शन में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो p ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल डायरेक्शन में मौजूद हैं और इनकी क्या होगी कि साइड भी ओवरलैप होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पाई बॉन्ड विल फॉर्म। इसमें जब दो p ऑर्बिटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इनका साइड टू साइड ओवरलैप होगा और इनके दरमियान फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसमें फिर से 2pz इसके 2pz के साथ ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड बन जाएगा, और 2py जो है दूसरे नाइट्रोजन के 2py के साथ ओवरलैप करेगा और इनके दरमियान भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसकी फाइनल फॉर्म या फाइनल शेप जो है इस तरह से बनती है कि ये एक सिलेंडर टाइप जो है वो आपको अपीयरेंस नज़र आती है। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जिसमें दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड टू आर दी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से बनता है और पाई बॉन्ड जो है वो p ऑर्बिटल के साइड भी ओवरलैप से बनते हैं। सो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में a ट्रिपल बॉन्ड होता है, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड टू आर दी पाई बॉन्ड्स। Now here is the formation of H2S molecule. This is a non-linear molecule and the bond angles between the two hydrogen and sulfur bonds is about 92 degree। एक non-linear molecule है और इसमें दो हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो 92 डिग्री का होता है। अगर हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py और 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन दैट इट कैन यूज इट्स 2 ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड हैं फॉर ओवरलैपिंग। इसमें जब दो p ऑर्बिटल जो हैं सल्फर के जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, व्हेन दे ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें फिर इनके दरमियान जो है वो दो सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सल्फर के p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें जो है E2py के साथ जो है S1s हाइड्रोजन का आके ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। दिस वन इज द 3pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हाइड्रोजन का 1s आएगा और इस 3pz के साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसमें अगर अब हम इनके दरमियान बॉन्ड एंगल देखें तो वो 92 डिग्री का होता है और इसका जो है वो बैंड जो है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट्स नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। Here is the recapitulation of lesson.
In this lesson we have read about what is valence bond theory. इसमें हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग दे ओवरलैप, और ओवरलैप के नतीजे में क्या होता है, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. वी हैव रीड अबाउट द इसेंशियल कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लाजमी तौर पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ज़रूरी है. और दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस डायरेक्शन में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बॉन्ड की डायरेक्शन भी वही होगी और इसके अकॉर्डिंगली ही बॉन्ड बनेगा. थर्ड वन इज we have read about that how atomic orbital overlap during bond formation, कि atomic orbital किस तरह से bond formation के दरमियान overlap करते हैं. and we have read about what is sigma bond, कि sigma bond कब बनता है, जब s और s का overlap होता है, और जब s और p का आपस में overlap होता है, जब p और p का head to head overlap होता है. इन तीनों केसेस में sigma bond is formed. and what is pi bond, कि pi bond कब बनता है, पाई बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो. आफ्टर दैट पैरेलल जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइड भी ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है. ये हमने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में देखा था कि किस तरह से दो पी ऑर्बिटल जो हैं वो साइड भी ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं. वी हैव रीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन HF and H2 molecule, and also about the formation of nitrogen and H2S molecule. Now we are moving towards today's assignment. Here are some MCQs. First one is valence bond theory explains only structure of orbital, shapes of molecules, forces of orbital, and orientations of orbital. Second one is the bond formed in N2 molecule is A option is sigma bond, B option is pi bond, C option is sigma and pi, and D is none. Third MCQ is the bond angle between two HS bonds is about. First option is 92 degree, second option is 90 degree, third option is 120 degree, and fourth option is 180 degree. Fourth one is the short question. Explain how sigma bond is formed. इसमें आपने बताना है कि sigma bond किस तरह से बनता है. And fifth one is describe the formation of N2 molecule according to VBT. N2 molecule किस तरह से बनता है, VBT के अकॉर्डिंग किस तरह से ओवरलैपिंग होती है और किस तरह से N2 का मॉलिक्यूल बनता है. And here is the next short question. You have to write about the difference between sigma bond and pi bond. कि sigma और pi bond के दरमियान differences क्या हैं, ये किस तरह से बनते हैं और उनकी strength में या इनकी जो है क्या difference होता है. Thank you students. Allah Hafiz.